I am happy for this opportunity to fellowship with you all. और मैं बहुत खुश हूँ ये जो मौका मुझे मिला है आप सबके साथ संगति करने के लिए। Last time I shared about God's infinite love towards each one of us. और पिछले बार मैंने बताया था कि परमेश्वर का जो असीमित प्रेम है हमारे प्रति, उस बारे में मैंने बात की थी। We discussed that, we saw that that is the foundation for our Christian life. और हमने देखा कि हमारे मसीही जीवन की यही नींव है। Today I want to share about our personal relationship with God. और आज मैं बांटना चाहता हूँ हमारा जो परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रिश्ता है उसके बारे में। In my life, something which the Lord reminded me early in my Christian life is that Christian life is not about just a part of a church. और मेरे मसीही जीवन के शुरुआत में जो परमेश्वर ने एक बात मुझे याद दिलाई वो ये थी कि मसीही जीवन बस एक कलीसिया का सदस्य बनकर रहना ही नहीं है। We should not be happy just because we know that we are part of a church. हमें बस इस वजह से खुश नहीं होना है कि हम एक कलीसिया के सभासद हैं या उस एक कलीसिया में हम जाते हैं। Or we should not be happy just because we are part of some good organization, Christian organization or anything. या हम कोई एक अच्छे मसीही संगठन के भाग है, उस चीज से हमें खुश नहीं होना है। So this is a thought the Lord has given my heart, that Christian life is a relationship with Jesus Christ. और ये विचार प्रभु ने मेरे मन में डाला कि मसीही जीवन यीशु मसीह के साथ एक रिश्ता या एक संबंध है। And it is very personal. और ये बहुत ही व्यक्तिगत है। It is not because my mummy and papa, they are called Christian, so I am a Christian. It is not like that. और क्योंकि मेरे माँ बाप ईसाई है या मसीही है, उस वजह से मैं मसीही नहीं बनता। I should know, and we each one of us should know Jesus Christ in a personal way. मुझे और हम में से हर एक व्यक्ति को यीशु मसीह को एक व्यक्तिगत तौर पर जानना है। In other words, Christian life is a very personal life. दूसरी तरह कहे तो मसीही जीवन एक व्यक्तिगत जीवन है। Because the Lord want and Lord is desiring fellowship with each one of us in a very personal way. प्रभु चाहता है और प्रभु ये मंशा रखता है कि हम सबके साथ उसका एक व्यक्तिगत संबंध हो। I just want to start with a little testimony about myself. और शुरुआत में मैं अपनी गवाही बांटना चाहूंगा। I was part of something called a Christian church. और मैं एक मसीही कलीसिया का भाग था। And I used to go to church every day with my parents. और मेरे माता पिता के साथ मैं हर दिन कलीसिया जाया करता था। And with great interest I used to participate in all the activities there. और बहुत ही दिलचस्पी से वहां जो कुछ कार्यक्रम होते थे उनमें मैं सहभागी होता था। I believed that there is a God. और मैं ये विश्वास करता था कि एक परमेश्वर है। And I used to pray when I am sick. I used to pray for healing. When as a student, when I wanted to get marks, I used to pray for that also. And God used to always answer my prayers also. और मैं जब बीमार होता था तो मैं चंगाई के लिए प्रार्थना करता था। जब मैं एक विद्यार्थी होकर परीक्षा के लिए प्रार्थना करता था तो इन सारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर उत्तर भी देता था। But when I joined a college. पर जब मैं एक महाविद्यालय या कॉलेज में जब मैंने प्रवेश लिया, I met a friend there. वहां मैं मेरी मुलाकात एक मेरे दोस्त से हुई। So there when I talked to him, I understood certain things which I never knew before. जब मेरी उसके साथ बातचीत हुई तो मैं कुछ ऐसे चीजों के बारे में जानने लगा जिनके बारे में मुझे पहले जानकारी नहीं थी। Because first thing he told me is that just because I have a Christian name, I am not a Christian. और उसने सबसे पहले बात मुझे जो बताई, सिर्फ मेरा नाम ईसाई है या मसीही है, उस वजह से मैं एक मसीही नहीं हूं।
he told me that in the Acts of the Apostle, it is written that it is the disciples of Jesus who were called Christians in that first century. और मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि बाइबल में प्रेरितों के काम में ऐसा लिखा गया है कि पहले शताब्दी में जो यीशु के शिष्य थे उन्हीं को मसीही कहा जाता था. So actually, probably they were teaching them, those who followed Jesus Christ, those who believed in Jesus Christ, those who became Jesus' disciples and their life was changed, and others, worldly people, teased them calling the name Christian. और वास्तविकता में तो जो लोग पहले शताब्दी में मसीह के शिष्य बनते थे, जो मसीह के अनुसार अपना जीवन चलाते थे, जो लोग इन लोगों को, जो बाकी के लोग थे, वो उनको चिढ़ाने के लिए मसीही कहते थे. So that friend asked me, have you received Jesus as your personal savior? और मेरे दोस्त ने मुझसे सवाल किया कि क्या तुमने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में तुमने उसका स्वीकार किया है? I did not like that question at the time, and I was also surprised why he asked that question. और उस समय मुझे वो प्रश्न बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और मुझे बहुत आश्चर्य भी हुआ कि ये व्यक्ति मुझसे ऐसा प्रश्न क्यों कर रहा है. But he showed me one verse from the Bible, that is in John chapter 1 verse 12. पर उसने मुझे बाइबल से एक वचन को दिखाया जो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 12 वचन. It reads that whoever received him, to them God gave right to become children of God. और वहां लिखा है परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया. So even though I have read the Bible before, I never noticed that verse. और इसके बावजूद कि मैंने उस समय से पहले भी बाइबल को पढ़ा था, पर इस वचन पर मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया था. And nobody in my church also told me that I should personally receive Jesus as my personal savior. और मेरी कलीसिया में भी मुझसे किसी ने भी ये नहीं कहा कि मुझे यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत या निजी उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना है. So till then I thought I am a good Christian because I am the son of a good Christian parents. उस समय तक मेरी ये सोच थी, मेरी ये समझ थी कि मैं एक अच्छा मसीही व्यक्ति हूँ क्योंकि मैं अच्छे मसीही माता पिता का पुत्र हूँ. Then that time I understood that even though I was praying and even though God was answering my prayer, I never had a personal relationship with God. उस समय मुझे इस बात का एहसास हुआ कि यद्यपि मैं प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर मेरे प्रार्थनाओं का उत्तर भी देता था, पर फिर भी मेरा परमेश्वर के साथ कोई भी व्यक्तिगत संबंध नहीं था. So I understood something like somebody is driving a car. और मैंने ये समझा कि ये इस प्रकार है मानो कोई एक व्यक्ति एक गाड़ी चला रहा हो, कार चला रहा हो. If that life, the car is compared to his life, he is controlling his own life, controlling the car. और अगर हम उस कार की तुलना एक व्यक्ति के जीवन से करें तो वो ऐसा है कि वो व्यक्ति खुद अपने गाड़ी को या अपने जीवन को चला रहा है. So it is, I felt like I was living a life. Jesus is in my car. In my life, Jesus is there. और फिर मुझे ये एहसास हुआ कि मैं एक ऐसी गाड़ी चला रहा हूँ जिसमें यीशु मसीह वो उस गाड़ी में तो है. But Jesus is, I have given him seat on my back seat of my vehicle. पर मैंने यीशु मसीह को अपने गाड़ी के पीछे का स्थान दिया हुआ है. And I am controlling my life, which myself. और मैं अपने जीवन को या मैं अपने आप का नियंत्रण कर रहा हूँ. And whenever I want help from Jesus, I'll turn back and pray. Jesus, help me. I want to pass my exam. I am sick now. I want healing. So I will pray to him. और जब कभी मुझे मदद की आवश्यकता होती है, सहायता की आवश्यकता होती है, तब मैं पीछे मुड़कर यीशु से कहता हूँ, प्रभु मेरी परीक्षा है, तू मेरी मदद कर, या मैं बीमार हूँ, तू मुझे चंगा कर. And Jesus is so loving. He will answer. He used to answer my prayers. और यीशु मसीह इतना प्रेम करने वाला था कि वो मेरी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता था. So that day I realized there is a better way than I am controlling my life.
instead I should invite Jesus to the steering wheel. I should ask Jesus to drive my vehicle. और उस दिन मुझे ये बात समझ में आई कि इससे भी एक बेहतर तरीका है जीवन जीने का कि मैं यीशु मसीह को न्योता दूं कि वो मेरे गाड़ी को चलाए, वो मेरे जीवन की डोर संभाले। And I should sit by his side and I should allow Jesus to control my life. और मैं यीशु मसीह के बाजू में बैठूं और यीशु मसीह को अपने जीवन को नियंत्रित करने दूं। So that day I prayed, I confessed my sins, and I prayed and I asked Jesus to come into my heart as my Savior and as my Lord. और उस दिन मैंने प्रार्थना की, मैंने अपने पापों का अंगीकार किया और उस दिन मैंने यीशु मसीह को अपने जीवन में न्योता दिया और अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता कर मैंने उसको स्वीकार किया। And my life was changed. और मेरा जीवन बदल गया। Till then I was a person who was very strong. I always wanted to do my will. और उस समय तक मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत ही सामर्थ्यवान या अपनी ही इच्छा करना चाहता था। But I realized that it is best to give control of my life to Jesus. और तब मुझे इस बात का ज्ञात हुआ कि मैं अपने जीवन का नियंत्रण पूरी तरीके से यीशु मसीह को दे दूं, ये अच्छी बात है। And accept his will for my life. और मेरे जीवन के लिए जो उसकी इच्छा है उसको मैं ग्रहण करूं। So I realized that Jesus will for my life, that is the best for me. और तब मुझे इस बात को मैं समझ गया कि यीशु मसीह की मेरे जीवन के लिए जो इच्छा या योजना है वो मेरे लिए सर्वोत्तम है। And whatever I am trying to do good for me, Jesus compared to that, Jesus' plan for my life and Jesus' will for my life is far more better. और मुझे ये समझ में आया कि जो मेरी अपने जीवन के लिए योजनाएं हैं उससे जो यीशु मसीह की मेरे जीवन के लिए योजना या इच्छा है वो कई ज्यादा बेहतर है। So I took some time to understand that. और इस बात को समझने में मुझे थोड़ी देर लगी। So after some time, when I realized the Lord's desire for me, Lord's plan for my life and his will for my life far more better than my own desire, it brought such a relief to me. पर कुछ समय के बाद जब मुझे इस बात को मैंने समझ लिया कि प्रभु की मेरे जीवन के लिए जो इच्छा है या योजना है वो मेरे निजी इच्छा या योजना से कई अधिक बेहतर है, तो इससे मेरे जीवन में बहुत एक विश्राम मुझे प्राप्त हुआ। So two things I learned during that period. और उस समय में मैंने दो बातों को सीखा। One thing is Jesus is my savior from sin. पहला तो यीशु मसीह मेरा अपने पापों से उद्धार करता है। That is written in Matthew chapter 1 verse 21. और ये मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 21 वचन में लिखा है। He will not only forgive my sins, that is forgiveness is very important. वो ना केवल मेरे पापों की क्षमा करेगा, पापों की क्षमा बहुत ही जरूरी है। And not only that, he will also give me victory over sin. उतना ही नहीं बल्कि वो मुझे अपने पापों के ऊपर विजय भी देगा। That means he will save me from the power of sin. इसका मतलब वो मुझे पाप के सामर्थ्य से छुटकारा देगा। I may not be doing able to overcome sin by my own strength, but Jesus will deliver me from the power of sin. मैं अपने सामर्थ्य से अपने आप को पाप की सामर्थ्य से छुड़ा नहीं सकता, पर यीशु मसीह मुझे पापों के सामर्थ्य से छुड़ाएगा। So that is one thing I learned. First thing is he is not only my savior from sin. He will not only forgive me from my sins, but he will also save me from my sin. और फिर मुझे एक बात समझ में आई कि यीशु मसीह ना केवल मेरे पापों की क्षमा करेगा बल्कि मुझे अपने पापों से वो छुड़ाएगा भी। So another part what I learned is Jesus should be Lord in my life. और दूसरी बात जो मैंने सीखी वो ये थी कि यीशु मसीह मेरे जीवन में उसको प्रभु का स्थान होना चाहिए। Lord means he is in charge. He should be in charge of my life. और प्रभु होने का मतलब ये है कि यीशु मसीह के पास मेरे जीवन का नियंत्रण होना चाहिए। So I should allow him to do that. और मुझे यीशु मसीह को ये अनुमति देनी है कि वो ये मेरे जीवन में करे। Bible says that he knocks at the door. और बाइबल ये सिखाती है कि यीशु मसीह उस दरवाजे पर रहकर खटखटाता है। There's a difference between Jesus and the devil. यीशु मसीह और शैतान में एक फर्क है।
devil will come, he will try to push open the door and enter. जब शैतान आता है तो वो दरवाजा खुद से बल से या सामर्थ से तोड़कर अंदर आता है, But when Jesus comes, he will knock at the door. पर जब यीशु मसीह आता है तो वो उस दरवाजे पर आकर वो खटखटाता है He will ask my permission, my agreement. और वो मुझसे पहले मेरी अनुमति मांगेगा, अनुमति पूछेगा. So Jesus will become my Lord only when I agree with him, when only I allow him to be my Lord. और यीशु मसीह मेरे जीवन का तभी प्रभु बनेगा अगर मैं उससे सहमत हूं और मैं उसको अनुमति दूं तो. So being Lord of my life means handing over complete responsibility of my life to Jesus. और मेरे जीवन का प्रभु होना, इसका ये मतलब है कि मेरे जीवन की सारी जिम्मेदारी मैं यीशु मसीह को सौंप देता हूं. That is a wonderful life. ये एक अद्भुत जीवन है. About my ambitions, my future, my job, my money, everything, I should make Jesus, or I should allow Jesus to be Lord over all of that. मेरी महत्वाकांक्षाएं हो, मेरी नौकरी हो, मेरा भविष्य हो या मेरे पैसे हो, इन सारी चीजों को मुझे यीशु मसीह को सौंपकर उसको मेरे जीवन का प्रभु और स्वामी करना है. So over the period of years, I understood it's such a wonderful life. और कुछ सालों के कालावधि में मैंने इस बात को जाना कि ये एक अद्भुत जीवन है. Handing over responsibility of every aspect of my life to Jesus. मेरे जीवन के हर क्षेत्र की जिम्मेदारी को यीशु मसीह की ओर ऊपर सौंपना. And just like earlier I mentioned the example of handing over my steering wheel of my car to Jesus. जैसे मैंने शुरुआत में एक उदाहरण दिया था कि अपनी गाड़ी के जो स्टीयरिंग व्हील है उसको यीशु मसीह को दे देना. So I understood the rest and the freedom that comes out of that. और ऐसा करने पे जो विश्राम और जो आराम हमारे जीवन में आता है उसको मैंने अनुभव किया. So once I allow Jesus to be the Lord of my life, he takes a responsibility for everything concerning me. और एक बार अगर मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी यीशु मसीह को दे देता हूं तो वो मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र, हर एक पहलू का जिम्मेदारी उठाता है. So it is not anymore my burden, it is his burden. और उसके बाद वो मेरा बोझ नहीं है, वो यीशु मसीह का बोझ है. Just like a father or parents take responsibility for the children, Jesus would love to take the responsibility for every aspect of our life. जिस प्रकार एक पिता या माता पिता अपने बच्चों की पूरी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार होते हैं, उसी प्रकार यीशु मसीह भी हमारे जीवन के हर पहलू की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है. We know that Bible verse in 1 Peter chapter 5 which says that cast all your burden upon him because he cares for you. और पहले पत्रस उसके 5वें अध्याय के 7वें वचन को हम जानते हैं कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है या चिंता है. So when Jesus is caring for me, I should be more than happy to pass on all my burden to him. जब यीशु मसीह खुद मेरी चिंता करता है तो मुझे तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि मैं अपने सारे बोझ यीशु मसीह को दे दूं. So that was a wonderful learning which I learned over a period of time. और ये बहुत अद्भुत पाठ था जो मैंने थोड़े समय में सीखा. I should never carry my burden on my head. मुझे कभी भी मेरे बोझ को अपने सिर पर लेकर नहीं चलना है. As and when burden come, I should immediately hand over to Jesus. जिस समय भी मेरे सिर पर कोई बोझ आता है तो मुझे उसको यीशु मसीह को सौंप देना है. Because he is my Lord. क्योंकि वो मेरा प्रभु है. And not only that, he is caring for me. उतना ही नहीं बल्कि वो मेरी चिंता करता है. And another thing which so that is why I mentioned our personal relationship with Jesus is important. और इस वजह से मैंने शुरुआत में कहा कि यीशु मसीह के साथ जो मेरा व्यक्तिगत संबंध है वो जरूरी है. In 1 Peter chapter 1, we read a verse there. पहला पत्रस उसके पहले अध्याय में हम एक वचन को पढ़ते हैं. Even though we don't see him, we love him. और वहां लिखा है कि यद्यपि हम उसे देखते नहीं, उसके बावजूद हम उससे प्रेम करते हैं. We have not seen, none of us have seen Jesus personally, like you see me, we have not seen in that way.
हम में से किसी ने भी यीशु मसीह को व्यक्तिगत तौर पर नहीं देखा है। जैसे आप मुझे देख पाते हो, वैसे हम में से किसी ने भी यीशु को नहीं देखा है। but we experience Jesus. पर हम यीशु मसीह का अनुभव कर सकते हैं। Just like my physical eyes, I can see in the same way as a reality, I can know Jesus personally. मेरे शारीरिक आंखों से जिस प्रकार मैं देख सकता हूँ, वैसे ही वास्तविक तौर पर मैं यीशु मसीह को जान सकता हूँ। And it is not just a story. और ये कोई कहानी मात्र नहीं है। Each one of us can experience Jesus. हम में से हर कोई यीशु मसीह का अनुभव कर सकता है। That is why Bible says that taste and see that the Lord is good. और इस वजह से बाइबल कहती है कि चख कर देखो कि प्रभु भला है। So we can taste Jesus, we can taste the Lord. और इसलिए हम यीशु मसीह को चख सकते हैं, हम प्रभु को चख सकते हैं, We can experience Him. हम उसका अनुभव कर सकते हैं। So it is not just a story in this book. और ये सिर्फ इस पुस्तक में लिखी हुई कोई कहानी नहीं है। And we also receive this ability to love Him as a person. और हमारे अंदर हम इस क्षमता को भी प्राप्त करते हैं कि हम यीशु मसीह को एक व्यक्ति के समान उस पर प्रेम कर सके। So that is what verse says. Even though we have not seen Him, we love Him. और यही तो बात उस वचन में लिखी है कि यद्यपि हमने उसे देखा नहीं है, उसके बावजूद हम उससे प्रेम करते हैं। So we should all, this is a question we should ask ourselves, and we should make sure that each one of us love Jesus personally, supremely. और ये एक प्रश्न है जो हम सबों ने अपने आप से करना चाहिए, और हमने इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि हम यीशु मसीह को व्यक्तिगत तौर पर उससे प्रेम करते हैं। Sometimes when I pray personally, I pray something like this. और कई बार मेरी जो निजी प्रार्थना होती है उसमें मैं इस प्रकार प्रार्थना करता हूँ, Lord, I love you. प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। I love you more than anybody else and more than anything else. मैं किसी और व्यक्ति से भी ज्यादा और किसी और चीज से भी ज्यादा तुझसे प्रेम करता हूँ। Even though we may think I have not reached there, but it is good to express at least our desire. यद्यपि हम शायद इस स्तर तक आज तक नहीं पहुंचे हैं, पर हमारे जीवन की ये मंशा है, इसको व्यक्त करना एक अच्छी चीज है। Lord, I intend to, my desire is to love you more than anything else and more than anybody else. प्रभु ये मेरी इच्छा, ये मेरी चाहत है कि मैं किसी भी व्यक्ति से ज्यादा और किसी भी वस्तु से ज्यादा तुझसे प्रेम करूं। So I desire, something like people telling about me, like that brother, he is someone who loves the Lord. और मेरी ये मंशा है, मेरी ये इच्छा है कि लोग मेरे बारे में ऐसा कहे कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रभु से प्रेम करता है। More than anything else, that is more important. और उसके जीवन में दूसरी कोई भी चीज से अधिक महत्व वो प्रभु से प्रेम करता है। So we all should be desiring that, Lord, I want to love you more than anybody else and more than anything else. और हम सबों के मनों में ये चाहत होनी चाहिए कि प्रभु किसी भी और व्यक्ति से ज्यादा, किसी भी और वस्तु से ज्यादा मैं तुझसे प्रेम करना चाहता हूँ। Because he is worthy of our love. क्योंकि वो हमारे प्रेम के योग्य है। And we read something written in Exodus. और निर्गमन की पुस्तक में हम एक वचन को पढ़ते हैं, Exodus chapter 21. निर्गमन उसका 21 अध्याय। It is written about some rule regarding Hebrew slaves. और जो इब्री दास होते थे उनके बारे में कुछ नियमों का यहाँ उल्लेख दिया है। So after the Jewish law, any Hebrew slave, he has a right to be free after 6 years working for the master. और कोई भी यहूदी जो दास या गुलाम होता था, उसके पास ये हक था कि 6 साल काम करने के बाद वो उसके धनी से अलग हो सकता था, स्वतंत्र हो सकता था। That means after 6 years he worked, he is a free person. मतलब अगर 6 साल वो सेवा करे, गुलामी करे, तो 7वें साल में वो एक स्वतंत्र व्यक्ति था। His master cannot stop him from going and doing whatever he likes.
उसका जो स्वामी है वो उसको रोक नहीं सकता था कि तुम अपनी मर्जी नहीं कर सकते। But there is in Exodus 21 verse 5 it is written, पर निर्गमन उसका 21 और उसके 5वें वचन में ये बात लिखी है, it is some slaves who will love their master so much. ऐसे भी कुछ दास होते थे जो अपने स्वामी से बहुत प्रेम करते थे। So when the 6 years work is over, that contract work is over, और जब 6 साल का वो कालावधि खत्म हो जाता था and master is telling, it's okay, you can go, you're free now, you can go away, और you can do whatever you like. 6 साल के बाद वो स्वामी उनसे कहता है कि अब तुम आजाद हो, तुम जाकर जो चाहे वो कर सकते हो। But that master is saying, and then that slave is saying, I love my master. पर वो दास ये बात को कहता है कि मैं अपने स्वामी से प्रेम करता हूँ, I don't wish to go as a free man. इसलिए मैं स्वतंत्र होकर नहीं जाना चाहता। So that is an example how our life and our devotion to Christ should be. और ये एक उदाहरण है कि हमारा जीवन और मसीह के प्रति हमारी जो एक भक्ति है वो किस प्रकार होनी चाहिए। So being a disciple of Jesus, it is our personal choice. यीशु का शिष्य बनना ये हमारा व्यक्तिगत चुनाव है। When Jesus was on earth, when so many people used to follow him, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था तो कई लोग उसके पीछे चलते थे। there was a time when some 70 people were following him. एक समय था तकरीबन 70 लोग उसके पीछे चलते थे। But then when Jesus started teaching certain things, they felt that these are very hard things to follow. पर जब यीशु मसीह कुछ चीजों को सिखाने लगा तो कुछ लोगों ने ये समझा कि यीशु मसीह बहुत ही कठिन चीजों का प्रचार कर रहा है। And then they said, no, we cannot follow this, and they left Jesus. और फिर उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम यीशु मसीह के पीछे नहीं हो सकते, और उन्होंने यीशु मसीह को छोड़ दिया। And Jesus did not stop them. और यीशु मसीह ने उन्हें रोका नहीं। Jesus did not have any bad feelings to them also. और यीशु मसीह का उनके प्रति कोई भी बुरा व्यवहार या बुरे उसके मन में कोई विचार नहीं था। So after all those people left, only 12 disciples were left. और वो सारे लोग जब छोड़कर चले गए तो उसके बाद केवल 12 शिष्य बच गए थे। So he asked them also, are you also not going? और फिर यीशु मसीह ने उन 12 शिष्यों से भी पूछा, तुम नहीं जाना चाहते? Then Peter said, where shall we go, Lord? और फिर पतरस ने कहा कि हम कहाँ जाए प्रभु? Words of eternal life is with you. अनंत काल के जीवन शब्द तो तेरे पास है। So meaning Jesus gives freedom to anybody to go. इसका मतलब है यीशु मसीह किसी भी व्यक्ति को जाने की छूट या स्वतंत्रता देता है। So it is our choice to follow him. और ये हमारा चुनाव है कि हम उसके पीछे चले या नहीं। See, I cannot even force my wife to follow Jesus. वास्तविकता में तो मैं अपने पत्नी को भी ये उस पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता कि वो यीशु मसीह के पीछे चले। I can encourage her, but I cannot force her. मैं उसको प्रोत्साहित कर सकता हूँ पर मैं उसको जबरदस्ती नहीं कर सकता। I cannot make my children to follow Jesus. When they are grown up, it becomes their choice. मैं अपने बच्चों पर भी ये जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता कि वो यीशु मसीह के पीछे चले। जब वो बड़े हो जाएंगे तब ये उनका निर्णय होगा। I can teach them, I can encourage them, and they can see my life. मैं उनको सिखा सकता हूँ, मैं उनको प्रोत्साहित कर सकता हूँ और वे मेरे जीवन को देख सकते हैं। So what I mean is, it is a personal choice. Jesus gives us so much freedom. और मेरे कहने का ये मतलब है, ये हमारी व्यक्तिगत आजादी है और यीशु मसीह हमें बहुत आजादी देता है। And just like this slave, Hebrew slaves, that should be our love for the Master, our love for Jesus is what should motivate us to follow him. और उस यहूदी दास के समान हमारा जो अपने प्रभु या हमारा जो यीशु के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम की वजह से हम उसका अनुसरण हमें करना है। You know, somebody asked Jesus, what is the most important commandment?
हम जानते हैं कि किसी एक व्यक्ति ने यीशु मसीह से पूछा कि सबसे महान या सबसे जरूरी आज्ञा कौन सी है। So Jesus replied, that is in Luke chapter 10, verse 27. और यीशु मसीह ने उसका जवाब भी दिया, लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और 27वां वचन। Yeah, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind. और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। So in simple term, what we can understand in a very simple way, most important thing in life is loving Jesus. और अगर मैं साधारण शब्दों में कहूं तो मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, यीशु मसीह से प्रेम करना। Our life should be motivated because of our love for Jesus. हमारे जीवन की प्रेरणा ही यही होना चाहिए कि हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। And our love for Jesus, and that is what we will nurture in our life, and that is because that is the most important thing in our life. और हम जो यीशु मसीह पर जितना हम प्रेम करते हैं उसी बात को हमें संभाल के बढ़ाना है, क्योंकि वो हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। And there's one more thing, we are able to love Jesus because we have so much received love from him. और एक और बात यह है कि हम यीशु मसीह से प्रेम इस वजह से कर सकते हैं क्योंकि हमने उससे बहुत प्रेम को स्वीकार किया है। Because Bible says in 1 John that we love him because he first loved us. क्योंकि बाइबल में पहले यूहन्ना के पत्री में हम पढ़ते हैं कि हम उससे प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। None of us have our own ability to love Jesus. हमें अपने आप के अंदर किसी में भी ये क्षमता नहीं है कि हम यीशु से प्रेम करें। But we are able to love him because he first loved himself. पर हम उससे प्रेम कर पाते हैं क्योंकि पहले उसने आप ही हमसे प्रेम किया। And that love he has poured in our heart. और इसी प्रेम को उसने हमारे मनों में उंडेला है। And that is why we are also able to love him in return. और इस वजह से हम भी उस पर प्रेम कर सकते हैं। You know that John chapter 3 verse 16 it says that God so loved the world. और हम जानते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और 16वें वचन कहता है कि प्रभु परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया। So we can say that even the world is written there, we should put my own name. God so loved Abu, I can say. और यद्यपि यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि प्रभु परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, वहां मुझे अपने नाम को रखना है और मैं कह सकता हूं कि परमेश्वर ने अबू से इतना प्रेम किया। And then God did not just say, I love you. और उसके पश्चात हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बस ये नहीं कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, But he sacrificed his son because he loved us so much. पर उसने अपने पुत्र को बलिदान किया क्योंकि वो हमसे इतना प्रेम करता था। And so that is why I said we are able to love him because we already so much received love from the Lord. और इसलिए मैंने कहा कि हम उससे प्रेम सिर्फ इसी वजह से कर सकते हैं क्योंकि हमने उससे इतने प्रेम को ग्रहण किया है। When we read John chapter 21, जब हम यूहन्ना उसका 21 अध्याय पढ़ते हैं, Jesus is telling Peter, और वहां यीशु मसीह पतरस से कुछ कह रहा है। Peter, you know, there was one full night he tried his best to catch fish. और पतरस ने एक पूरी रात कड़ी परिश्रम किए कि वो मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था। Even though he was an expert, even though he full night he toiled with his own strength, he did not catch anything. यद्यपि वो इस काम में माहिर था और उसने रात भर मेहनत भी की थी, उसके बावजूद उसने एक भी मछली नहीं पकड़ी। But then Jesus told, put the net on the other side of the boat. पर फिर यीशु मसीह ने उनसे कहा कि अपने जो नाव है उसके दूसरी ओर तुम जाली को फेंको। And we know that then he caught his net full of fish, which he has never seen in his life.
और फिर हम जानते हैं कि उसने इतने बहुतायत से मछलियों को पकड़ा कि उसने संपूर्ण अपने जीवन में इस बात को नहीं देखा था। So that was like winning a lottery for Peter. और ये मानो एक लॉटरी जीतने के समान था पतरस के लिए। It is such a unexpected, huge blessing which he received. और ये एक ऐसी चीज है जो उसके सोच से भी परे थी, एक ऐसा आशीष जिसे उसने प्राप्त किया। Not only that, when he came to the shore, Jesus also was already had prepared a fresh breakfast for him. इतना ही नहीं, जब पतरस किनारे आया तो यीशु मसीह ने पहले से ही उसके खाने की, उसके नाश्ते के लिए कुछ बनाया था। So after the Jesus asked him a question, that is in John chapter 21 verse 15. और इन सब बातों के बाद यीशु मसीह एक प्रश्न को पूछता है, यूहन्ना उसका 21 अध्याय और उसका 15 वचन। Peter, do you love me more than these? हे शमौन, हे पतरस, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? So that when you think about it, it can be, it is asking, do you love me more than the blessings I gave you? और अगर आप इसका विचार करें तो शायद यीशु मसीह उसको इस प्रकार सवाल कर रहा है कि पतरस, जो आशीषें मैंने तुझे दी है, क्या तू इन आशीषों से बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? More than the good breakfast I gave you, do you love me more than that? जो बढ़िया नाश्ता मैंने तुझे दिया है, क्या उससे बढ़कर तू मुझसे प्रेम करता है? And do you also love me more than these other friends around you? और तेरे आसपास जो ये दोस्त खड़े हैं, इनसे अधिक क्या तू मुझसे प्रेम करता है? So I remember once in a time, sometime the Lord used to challenge me about this. और मुझे याद है मेरे जीवन के एक समय में प्रभु मुझे इस बात से बहुत ही चुनौती देता था। Is my attention going some good things we have received from the Lord? क्या मेरा ध्यान ऐसी चीजों पर लगा है, कुछ अच्छी चीजें जो हमने प्रभु से प्राप्त की है? My things are, when we came to faith, our things are going better. God blessed us. और जब हम मसीही बने, जब हम विश्वास में आए, हमारे जीवन में काफी अच्छी चीजें होने लगी और परमेश्वर ने हमें आशीषित किया। Is my love and my devotion is getting diverted to attention going towards that? क्या मेरा प्रेम और मेरी भक्ति इन चीजों की तरफ भटक रहा है? So I see in my own life situation where I feel like Lord is asking, do you love me more than these things I have given you? और मुझे अपने जीवन में कई परिस्थितियां याद आती है जब प्रभु ने मुझसे पूछा, क्या तू मुझसे ये चीजें जो मैंने तुझे दी है, इनसे बढ़कर प्रेम करता है? This is something. It is something we should remind ourselves that we should learn to love Jesus more than any blessings, any good things we enjoy. This is worthy of our love more than all those things. और ये एक बात है जिसे हमें स्मरण भी रखना है और सीखना भी है कि यीशु मसीह को हम इन सारी चीजों से बढ़कर प्रेम करें, और वो हमारे सारी चीजों से अधिक योग्य है हमारे प्रेम के। So when we personally love Jesus, we'll be able to increasingly able to love him and be devoted to him. जब हम व्यक्तिगत तौर पर यीशु मसीह से प्रेम करेंगे, तब हम और आसानी से उससे प्रेम कर पाएंगे और उसके प्रति एक भक्ति बनाए रख पाएंगे। And everything that we do will be motivated because of our love for Jesus. और इसके बाद जो भी हम करेंगे, उस सारे कामों की प्रेरणा यही होगी कि हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। Lord will help us to progress into that. और प्रभु हमारी सहायता करेगा कि हमारी ऐसे जीवन में बढ़ोतरी हो। And a second part is, if you love somebody, what happens? और एक दूसरा भाग ये है कि अगर आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हो तो फिर क्या होता है? We will be happy to do whatever that person is telling us. उसके बाद हम खुश रहेंगे, अगर वो व्यक्ति जो कुछ हमसे कहे वो करने के लिए हम तैयार और खुश रहेंगे। So same principle apply in our life also. और यही एक तत्व है जो हमारे जीवन में भी यही सिद्धांत लागू होता है। Because Jesus told, if you love me, you will keep my commandments. और क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मुझसे प्रेम करो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। Jesus himself told, my commandments are not heavy. और यीशु मसीह ने खुद इस बात को कहा था कि मेरी आज्ञाएं कठिन या एक बोझ नहीं है। How we all experience that
commandments are not heavy. और हम कैसे इस बात का अनुभव कर सकते हैं कि यीशु मसीह की आज्ञाएं कठिन या एक बोझ नहीं है? I told you the example of many disciples leaving him, saying that your commandments are so heavy. और मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि कई शिष्य उसको छोड़ के चले गए क्योंकि उन्होंने कहा कि इसकी आज्ञाएं बहुत कठिन है। But when we love the Lord, his commandments are not heavy. पर जब हम प्रभु से प्रेम करेंगे तो उसकी कोई भी आज्ञा कठिन या बोझ नहीं लगेगी। And not only that, we also know that the Lord loves me and he will not ask me to do something which I cannot keep. इतना ही नहीं, हम इस बात को भी जानेंगे कि प्रभु मुझसे प्रेम करता है और वो मुझे ऐसी कोई भी बात करने को नहीं करेगा जो मैं नहीं कर सकता। If he has if he is asking me to do something, it is because it is for my own best. अगर वो मुझे कोई बात करने की आज्ञा देता है तो वो मेरे अच्छे के लिए है। And as we love him also in return, it is easy for us to keep commandments. और फिर जब हम भी उसको प्रति उत्तर में प्रेम करेंगे तो उसकी आज्ञाएं मानना हमारे लिए बहुत आसान होगा। So God wants each one of us to follow God's commandments, not because thinking that it's a burden, it's a difficult thing. और परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी सारी आज्ञाओं को माने, पर इस प्रकार से ये सोच रखकर नहीं कि परमेश्वर की आज्ञाएं बहुत कठिन है। If we really love him, his commandments will never be felt as a burden. अगर हम सचमुच उससे प्रेम करेंगे तो फिर हमें उसकी कोई भी आज्ञाएं कठिन या बोझ नहीं लगेगी। Each of God's commandments, we can see that it is each one of them are an expression of his love towards me. और अगर हम परमेश्वर की हर एक आज्ञा को देखें तो हम देखेंगे हर एक आज्ञा में परमेश्वर का हमारे प्रति प्रेम हम देख सकते हैं। And we can delight in his commandments. और फिर हम उसकी आज्ञाओं में आनंद कर सकते हैं। So may God help us, dear brothers and sisters, और परमेश्वर हमारी सहायता करे प्रिय भाई और बहनों, to be strong in our personal relationship with Jesus Christ. कि हमारा जो यीशु मसीह से व्यक्तिगत रिश्ता है उसमें हम मजबूत बने। He is worthy of our love. वो हमारे प्रेम के योग्य है। He is worthy of our devotion. वो हमारे भक्ति के योग्य है। And the best thing we can do is allow Jesus to be the Lord in our life. और सबसे अच्छी बात जो हम कर सकते हैं वो है यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभु और स्वामी करना। It is a blessed life. ये एक बहुत ही आशीषित जीवन है। And when our life should be motivated because of our love for Jesus. और हमारे जीवन जीने की यही प्रेरणा है कि हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। If you understand this, we Christian life will become an enjoyable life. और अगर हम इस बात को समझ ले तो हमारा मसीही जीवन एक आनंद का जीवन होगा। May God help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे।